Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmitang Jeno Tasmai Shri Guruve Namah Shri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Jeno Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam Vandeham Shri Guru Sri Jutapada Kamalang Shri Guru Vaishnavanscha Sri Rupang Sagrajatang Sagana Raghunathan Nitang Tang Sajivang Sadhaitang Savadutang Parijana Saitang Krishna Chaitanya Devang Shri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Shri Vishaka Nitangsa Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanto Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesa Sunnavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpataruvascha Kipa Sindhu Bhayevacha Patitanang Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanto Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Punamami Hari Priye Vrindavai Tulsi Devai Priyai Kesavasya Krishna Bhakti Padadevi Sattvatai Nama 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 Mavadannaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namune Gaurati Se Nama Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Shri Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanang Namaskritta Narang Chaiva Naraktamam Deving Saraswating Vyasang Tato Jayamudira Nashtaprasya Avedreshu Nittang Bhagavata Sevaya Bhagavatam Uttama Sulake Bhaktir Bhavati Nashtaki Mukang Kardi Vachalang Pangalangayate Grim Jat Kipatang Mande Shri Guru Dinatarinam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Isharam Om Tatsat Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Charu Shamniti Namine Snigdha Cheta Supaneta Bhagminam Charashapritam Prabhupada Gata Pranam Nami Bhakti Charu Padam Jai Guru Maharaj Ki Jai Satalpaturna Muttaya Satalpaturna Muttaya Kalo ayam iti vyabala Sutigriya magata turna Sutigriya magaturna Praskhalan muktam murdaja Praskhalang mukta murdaja Satalpaturna muttaya Kalo ayam iti vyabala Sutigriyam agaturna Praskhalan mukta murdaja Satalpaturnam uttaya Kalo ayamiti vyabala Sutigriyam agaturna Praskhalan mukta murdaja Sa, या कंस
तलपात बिस्तर से तूर्णम शीघ्र ही उत्थाय उठकर काल अयम यह रही मेरी मृत्यु परम काल, यह रही मेरी मृत्यु परम काल। इति इस प्रकार व्यबल उद्विग्न श्रुतिगृहम सौरा को अगात गया तूर्णम द्रिल लगाया बिना प्रस्खलन बिगड़े हुए मुक्त खुले मूर्धज सिर के बाल। शिला प्रभुपाद कर्तृक अनुवाद। कंस तुरंत ही बिस्तर से यह सोचते हुए उठ खड़ा हुआ, यह रहा काल जिसने मेरा वध करने के लिए जन्म लिया है। इस तरह उद्विग्न एवं अपने सिर के बाल बिगड़ाए कंस तुरंत ही उस स्थान पर पहुंचा जहाँ शिशु ने जन्म लिया था। तात्पर्य शिला प्रभुपाद कर्तृक। काल शब्द महत्वपूर्ण है। यद्यपि यह बालक कंस का वध करने के लिए उत्पन्न हुआ था, किंतु कंस ने सोचा कि इस बालक का वध करने का यह उपयुक्त समय है जिससे स्वयं उसका जीवन बच जाए। वास्तव में काल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की यह दूसरा नाम है। जब वे वध करने के उद्देश्य से प्रकट होते हैं। जब अर्जुन ने विराट रूप भगवान श्री कृष्ण से पूछा, आप कौन हैं? तो श्री भगवान ने कहा कि मैं साक्षात काल हूँ। प्रकृति का नियम है कि जब अवांछित रीति से जनसंख्या में वृद्धि होती है तो काल प्रकट होते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ऐसी व्यवस्था बनती है कि लोग बड़ी संख्या में युद्ध, महामारी, दुर्भिक्ष इत्यादि नाना कारणों से मारे जाते हैं। उस समय नास्तिक राजनीति नेता भी गिरजाधार, मस्जिद या मंदिर का ईश्वर से कृपा मांगते हैं, किंतु इसके पूर्व में श्री भगवान को या उनकी इच्छा को जानने का कोई प्रयास नहीं करते। काल के प्रकट होने पर ही वे कृपा मांगते हैं। मृत्यु परम काल अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक दूसरा पहलू है। मृत्यु के समय नास्तिक को सर्वोपरि काल के समक्ष घुटने टेकने पड़ते हैं और तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसकी सारी संपत्ति हर लेते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, और उसे दूसरा शरीर धारण करने के लिए बाध्य कर देते हैं तथा देहांतर प्राप्ति। नास्तिक लोग इसे नहीं जानते और यदि जानते भी हैं तो उसकी अपेक्षा करते हैं जिससे वे अपना सामान्य जीवन बिता सके। कृष्ण भावनामृत आंदोलन उनने यह खिलाने के सिखलाने का प्रयास कर रहा है कि भले ही वे कुछ वर्षों तक महान रक्षक या प्रहरी बने रहें, किंतु काल के प्रकट होते ही उन्हें दूसरा शरीर धारण करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। इसे न जान के कारण वे प्रहरी बनकर अपना समय व्यर्थ गंवाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करते। जैसे कि स्पष्ट कहा गया है, अप्राप्यमं निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमुनि। कृष्ण भावनामृतों के बिना मनुष्य को जन्म मृत्यु में भटकते रहना पड़ते हैं और इसका पता नहीं चल पाता है कि अगले जन्म में क्या होगा। शिला प्रभुपाद कर्तृक तात्पर्य यहाँ पर समाप्त है। ये अध्याय का नाम है राजा कंस के अत्याचार।
कि भगवान कृष्ण का जन्म लेने के समय जिसमें पता चला जे देवकी का गर्भ से संतान उत्पन्न हुई है, तो तुरंत आके उठ के आया, चल के आया देवकी के पास। किस लिए? उनके मालूम है जो अभी उनके मार डालेंगे तो मैं बांध जाऊंगा, लेकिन भगवान का इच्छा से कुछ नहीं हो सकता है। ये बाहर का आदमी नहीं समझता है। भक्त लोग भी भक्तों होने के बाद भी कभी कोई भूल जाता है जो भगवान का इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हाँ, अपन इच्छा जीव कोटि वांछा करे, कृष्ण इच्छा बिना कुछ फल नहीं धरे। कृष्ण के इच्छा, अपन इच्छा जीव कोटि कोटि वांछा कर सकता है, लेकिन कृष्ण के इच्छा से फल वो नहीं हो सकते। हाँ, तो ये बात समझने के लिए ये भागवत, गीता, चैतन्य चरितामृत हमेशा हम लोग के सतर्क कर रहा है जे कृष्ण का चरण में शरण लेना चाहे, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं। हाँ, रावण कंस जैसे करते हैं, भाव से, असुर भाव बुद्धि से चलते हैं, हम लोग भी ऐसे चलते हैं। हाँ, कृष्ण भूली जीव भगवान चा करे, निकटस्थ माया तारे जा पोटिया धरे। हाँ, तो ये बात तो हमेशा हम लोग सुनते हैं, लेकिन अंदर से उपलब्धि करने के लिए बहुत कठिनाई होते हैं। इसलिए शास्त्र ग्रंथ साधु संग बार बार करना चाहे। हाँ, ए घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर शेष। साधु संग करी हरि भजे यदि तबे হয় अंत क्लेश। हाँ, ए घोर संसारे पड़िया मानव ना पाए दुखेर शेष। हम लोग हमेशा दुख मिलते हैं, लेकिन दुख को छूटने के लिए बहुत प्रयास करते हैं जे कैसे हमारे दुख छोड़ते हैं। जिन भागवत में प्रथम स्कंद 5 अध्याय 8 नंबर श्लोक में उल्लेख है, तस्सैव हेता प्रयत कविदो न लभते तत् जत भ्रमतम उपरजत तद लभते दुखम वदान्नत सुखम कालेन सर्वत्र गवीर रंगासा। हम लोग सुख के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, दुख से के लिए नहीं प्रयास करता हूँ, लेकिन दुख आते ही है। हम लोग हमेशा चिंतन करते हैं कैसे में अच्छा रहेंगे, अच्छा जीवन हमारे चलेंगे, बहुत दिन हम लोग अच्छा से रह सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में कंट्रोल कुछ नहीं है। हाँ, ब्लड प्रेशर के भी कंट्रोल नहीं है, किडनी के भी कंट्रोल नहीं है। हमारे किसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे कोई क्षमता नहीं है, लेकिन करते हैं। हाँ, एक बार की बात है, दशरथ महाराज का जिस समय जन्म हुआ है, तो उसी समय दशरथ महाराज का ना, हाँ दशरथ महाराज का जन्म हुआ है, तब विधाता जा रहा है। हाँ, विधाता कौन है बोलो? ब्रह्मा जी जा रहे हैं। उसी समय कंस, उनके ऐसे शक्ति है, हाँ माया का ऐसे शक्ति है, माया बल वो जानते हैं, वो कारण से पूरा खींच के लेके आया। कहाँ जा रहा है? मैं जा रहा हूँ दशरथ के पास। किस लिए जा रहा है? न दशरथ का वो कपाल में लेकेंगे, जे उनका जो बड़ो बेटा होगा उनके हाथ से आपको मृत्यु होगा। क्या क्या होगा? दशरथ का बेटा के हाथ से मेरा मृत्यु होगा? क्या बोल रहा है? विजेता बस दूसरा बार बोले हैं। तो वो सुनकर रावण क्या किया, पूरा हंसना लगा। हाँ, जे अरे दशरथ का अभी जन्म हुआ, जन्म होने के बाद वो कितना दिन से बड़ा होगा, तापर शादी होगा, बेटा होगा कि नहीं होगा वो भी मालूम नहीं होगा।
दशरथ बाँचेगा कि मर जाएगा वो भी मालूम नहीं होगा। वो बेटा बड़ा होगा, बड़े होने के बाद मेरे मारेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। बहुत हंसना शुरू किया। जिस समय कंस बच्चे रावण का बहुत अमर हो गया, हाँ, बाल भी पाक गया, ऐसे हो गया। उसमें कंस का रावण का एक बार चिंतन हुआ, जी मेरा मृत्यु होने वाला है दशरथ के पुत्रों के हाथ में, लेकिन कब जन्म होगा, कब मरेगा, ये तो मेरा मालूम नहीं है। मेरा बाल तो पाक गया, हाँ, सफेद हो गया, हाँ, ऐसे मरने के लिए क्या ठीक है। मैं सोचता हूँ जाएंगे, विधाता के पास गया। जाने के बाद बोले, विधाता आप बोलिए हमारी मृत्यु किसको हाथ में है? बोले दशरथ का बड़ो बेटा के हाथ में होगा। दशरथ का बड़ो बेटा में हाथ में होगा। दशरथ की अभी शादी हुआ ना नहीं हुआ? बोले नहीं हुआ। तो कौन मरेगा? हाँ, वो तो मारने के लिए कोई प्रयास कोई नहीं देख रहा है, कोई लक्षण नहीं है। बोले आज ही दिन वो शादी होगा ना हो नहीं होगा? बोले शादी होगा, आज ही शादी होगा। अच्छा, दशरथ का तो बहुत बेटा है, बहुत स्त्री है, हाँ, लेकिन किसको दशरथ के, हाँ, किसको बेटा से मैं मरूंगा वो बोलिए, और किसकी बेटी से बेटा से मैं मरूंगा वो भी बोलना चाहे। दशरथ का तो बहुत वाइफ है। बोले ठीक है, दशरथ को साथ कौशल जैसे राजा जो कौशल का साथ शादी होगा ना, उनका बेटा आपको मार डालेंगे। वो सुनकर एकदम माने रावण क्या हुआ, बहुत हट्ट हास्य करके विधाता के हैं एक लात मार के चले गया। बहुत एकदम माने लात नहीं मारा, माने गुस्सा हो गए, हाथ से ऐसे करके चले गया, पूरा हंसना लगा। ब्रह्मा जी समझ क्या है, जे रावण तुमको पता नहीं है, भगवान काल उसमी, हाँ, सकल के मृत्यु हाँ सर्वस्व हरम, एखाने बोला है ना, सर्वहरश्च हम, जे हम ही मृत्यु का सब कुछ है। लेकिन रावण ऐसे किया, ब्रह्मा जी भी हंसना लगा। हाँ, जे रावण तुम जैसे बल दिखाते हैं ना, वो बल प्रभु के पास आपको कुछ नहीं है। हाँ, वो आएंगे आपको खूब सहज इजी से मार डाल सकते हैं। तो रावण चिंतन किया, आज शादी होगा ना, आज शादी होगा दशरथ के साथ। किसके साथ शादी होगा? कौशल जैसे राजा का बेटी कौशला का शादी होगा। ठीक है ना, तुरंत चले गया कौशल राज में। राजा होने के बाद जो लड़की के शादी होती है तो उसी समय तो बहुत सजा करके बहुत आनंद, हाँ, लेते हैं। तो उसी समय वो रावण माया का बहुत माया के जाल जानते हैं, हाँ, मायावी थे, हाँ, तो मायावी थे, तो इसलिए माया के प्रभाव से ऐसे घोर अंधकार, हाँ, लगा दिया। लगाने के बाद कौशल्या का वो मालूम है जे ये कौशल्या है, हाँ, पूछे कौन कौशल है? बोले एक कौशल है। बोले ठीक है। तो ऐसे अंधकार कर दिया, हाँ, आधार करने के बाद पूरा मालूम नहीं है हमेशा ऐसे कैसे हो गया, हाँ, व्यवस्था। तो कौशल्या के लेके भाग गया, लेके भाग गया। एक पूरा पेटी था, हाँ, बहुत बड़ा पेटी। वो पेटी में हाफ बहुत फ्रूट था, फल था, और कौशल्या के वहाँ पर, हाँ, रख दिया। रखने के बाद
बंद करने, वो एक बहुत दूर से एक दीप में रख के रावण चले आए। रावण बहुत आनंद लूट रहा है, जे देखो जिसका बेटा मेरे बात करेंगा ओके तो एक बहुत दूर से जंगल में एक दीप में रख के चले आ, कैसे जाएंगे, कैसे पता चलेगा, हाँ शादी तो नहीं होगा। हाँ, बाद में रावण चिंतन किया, अभी तो कौशल्या का ठीक ठाक हो गया, अभी दशरथ के पास मैं जाऊंगा। दशरथ सरजू नदी में उनके जो दोस्त है, दोस्त के लिए शादी का समय जैसे होते हैं, स्नान करने के लिए गए दशरथ महाराज। तो उसी समय आनंद लूट रहा है। तो रावण क्या है, महावी जो ये है, ऐसे पूरा अंधकार कर दिया, बहुत झड़ झंटा दिया, बहुत बारिश हुआ। ऐसे बारिश हुआ, पूरा सरजू नदी एकदम तूफान चल रहा है। और तूफान से वो दशरथ महाराज, हाँ, और सुमंत्र, वो पूरा भाषा का क्या बोलते हैं, भाषा, हाँ, बारिया, हाँ, बारिया बहुत तेज गति से जा रहे हैं। दशरथ महाराज के मालूम नहीं है इसे कैसे हो गया, क्या हो रहा है, हाँ? सुमंत्र भी पीछे पीछे चल रहा है। देखा गंगा से मिलन होने के पहले, हाँ, भगवान का जो इच्छा है वो इच्छा को भी नष्ट नहीं कर सकता है कोई, हाँ? वो ऐसे बांका होके वो पूरा तीर से पहुंचे गया और ऊपर में उठा। उठने के बाद दशरथ महाराज तो बहुत उपवास था ना, फास्टिंग थे, शादी के समय तो फास्टिंग होना चाहिए। तो बहुत क्लांत हो गया, ऊपर में गया, सो गया। सुमंत बोले महाराज क्या हुआ, शरीर बहुत दुर्बल है, क्या करूँगा, क्या हुआ मालूम नहीं है, कैसे मैं यहाँ पर आ गया। सुमंत्र बोले राजन मैं जंगल में जाऊँगा, वहाँ पर कोई फ्रूट होगा तो, फल होगा तो लेके आएंगे, आने के बाद अब खा लीजिए, खाने के बाद शरीर बहुत तेज आएगा। पर ठीक है सुमंत्र तुम जाए, मैं यहाँ पर विश्राम लेते। तो दशरथ महाराज पूरा विश्राम ले रहे, और उसी समय देखा जो एक बहुत बड़ा पेटी है, और वो पेटी पूरा नया तैयार है। किसका है, ऐसे जंगल में तो नहीं हो सकता। तो राजन के बोले हैं राजन एक नया पेटी देख रहा है, पेटी के अंदर में क्या है मालूम नहीं है, चलिए यहां पर पेटी कैसे आ सकते हैं, नया पेटी तैयार है। दशरथ महाराज के गए हैं, जाने के बाद खुला, खुलने के बाद देखा एक लड़की है, बहुत अच्छा साजा करके लड़की है। तखन सुमंत्र बोलना शुरू किया, तुम कौन हो? और मैं कौशल देश का राजा को बेटी हूँ, मेरी नाम है कौशल्या। अच्छा कौशल्या है, आज ही तुम्हारे शादी के डेट है ना? बोले है ही तो, कहाँ से शादी होगी? बोले अयोध्यापति महाराज दशरथ के साथ शादी होंगे, लेकिन कैसे मैं यहाँ पर आ गया मालूम नहीं है, कैसे पेटी में रख दिया, कौन रख दिया, कैसे रख दिया, कुछ पता नहीं है। मेरे भगवान का इच्छा अयोध्यापति महाराज दशरथ यहाँ पर आ गया, ये है महाराज दशरथ है, ठीक है। अच्छा शादी गंधर्व मत होते हैं, बहुत दिन खन में होते हैं, बहुत ये है नियम है। ऐसे नियम से सुमंत्र हाँ जंगल से फूल तोड़ के कैसे करके माला गाता है मालूम नहीं है, गातन करके पूरा शादी हो गया। होने के बाद दशरथ महाराज तो बहुत भूख लगा ना फ्रूट तो पूरा होती है पेटी में,
पूरा फ्रूट एकदम सुमंत्र कौशल्या दशरथ खाने के बाद जिसने बाँचा है पूरा उलट करके बाग पेटी पूरा खाली होने के बाद कौशल्या के सो दिया। उनके पास दशरथ महाराज सोया है, उनके पास सुमंत्र सो गया। हाँ, और ऊपर से डांगना बंद कर दिया। ब्रह्मा जी के पास, विधाता के पास गया रावण। रावण जाने के बाद बहुत हंसने लगा। तुम जो लेखन है कपाल में सिर में जो लेखा है, जे दशरथ का बड़ो बेटा मेरे बात करेंगे, शादी होने के बाद बेटा होगा, बेटा होने के बाद बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद मारेंगे, अभी शादी भी नहीं होगा। वो जो कहाँ से कहाँ गिर गया मालूम नहीं है। कौशल्या तो अलग से रख दिया। हाँ, हमारे एक दोस्त है, उनका नाम है त्रिमिंगल, वो एक द्वीप का मालिक है। वो द्वीप का मैं रख के आया। हाँ, और महाराज दशरथ जी कहाँ चले गया। हाँ, वो गंगा से उधर मर गया कि सरजा नदी में मर गया वो भी मालूम नहीं है। विधाता अभी हंसने लगा, रावण उसी समय हंसने लगा ना। अभी विधाता ब्रह्मा हंसने लगा। जो देखो भगवान का इच्छा कोई खंडन नहीं कर सकते। हाँ, क्या बोला, क्या बोला? भगवान का इच्छा कोई खंडन नहीं कर सकता है। हाँ, शादी भी नहीं होगा, बेटा होना तो हाँ बहुत बात है। ठीक है, देखेंगे, पेटी देखेंगे। कौशल का कहाँ रख दिया आपको मालूम है? त्रिविंगल लेके आओ पेटी। पेटी लेके आया। आने के पास ब्रह्मा जी के पास वो खुला है। खुलने के पास जाए जो पेटी खुला है, दशरथ महाराज तुरंत लाभ से उठा और दशरथ महाराज के देख के ही रावण एकदम पूरा तुरंत एकदम दौड़ हाँ लगा, बहुत दूर चले गया। उसी समय ब्रह्मा जी हंसने लगा। ये देखो रावण हंसते हैं, जे कैसे शादी होगा, बेटा होगा, मेरा मारेगा, देखो अभी क्या हो गया। अरे भगवान का इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तुम्ही सर्वेश्वर भुजेंद्र कुमार। हाँ, तुम्हारी इच्छा है विशेष सृजन पालन। भगवान का इच्छा से सब सृजन एवं पालन सब कुछ होते हैं। हम लोग प्रकृति क्रिय मानानी गुण कर्मणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्नते। एक कर्ता होने के बाद अहंकार के कारण से हम लोग जानकारी नहीं होता है जो भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, सब कुछ होगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं विदहंग समतितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मांग तो वेतना कश्चन। सप्तम अध्याय 26 नंबर श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं जो मैं सब कुछ जानता है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। लेकिन मेरे जानकारी के लिए बहुत कठिनाई है। एक बार ब्रह्मा जी बहुत तपस्या किया। तपस्या करने के बाद भगवान के पास आए हैं और भगवान पूछे हैं ब्रह्मा जी तुम तपस्या करने के बाद क्या जानकारी हुआ? मैं आपको पूरा जानकारी है। क्या जानकारी है बोलिए तो? बोले आपको कोई नहीं जान सकता है, ऐसे ही जानकारी है तपस्या करना। तो भगवान कृष्ण हंसना शुरू किया ऐसे, हाँ प्रभु जी आपको कोई नई जानकारी हो सकते हैं। हाँ, तो भगवान का जो ये है लीला है, ये हम लोग हमेशा सुनकर भगवान के बात विश्वास करके भगवान के पास जा सकते हैं। अभी गीता मैराथन है, चल रहा है। हाँ, तो मैराथन के तो लिए श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज का जो 50 वर्ष और संन्यास दिवस चल रहा है, वहाँ पर भी मैराथन के लिए बहुत बोल रहा है। जो गुरु महाराज के दान करने के लिए जो मैराथन हो रहा है। हाँ, और यहाँ पर तो मैराथन के लिए तो गीता का दाम बहुत कमती हो गया। हाँ, 210 रुपीज़ हो गया। हमारे तो मायापुर में 250 रुपीज़ है एक गीता का। हाँ,
लेकिन आप लोग तो भक्त हैं, हाँ? प्रचार करने के लिए तो हम लोग तैयार हो, लेकिन प्रचार करने के लिए आगे किस लिए मैं प्रचार करूँगा, हमारे क्या प्रॉफिट होगा? हाँ, मैं हमेशा सोचता है जो कुछ करता है मेरे कैसे प्रॉफिट होगा, ऐसे ही मैं हमेशा सोचता हूँ। अरे ये बात भी दूसरा की भी बोलते हैं, जे देखो क्या होगा, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हाँ, अरे कहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ तारपर प्रचार के लिए। एक यंग लड़का ईस्ट फ्रॉम में योगदान दिया, देने के बाद भगवान के पास गया, जाने के बाद भगवान का बोलना शुरू किया, प्रभु जी मैं कभी 4 बजे नहीं उठते हैं, आपको भक्ति करने के लिए मैं 4 बजे उठा है, कभी हाँ भेज तो नहीं खाते, नॉन वेज नहीं खाते, सब समाज जने खाती है, मांस मछली डिम प्याज लहसुन खाते हैं, लेकिन अभी भगवान के प्रसाद खा रहा है, हाँ प्याज लहसुन भी नहीं खा रहा है। भगवान आप सुनिए, मैं आपको लिए कर रहा है, आपको मेरे लिए करना चाहे, मैं परीक्षा देंगे जाते अच्छा से रिजल्ट होगा, ये आपको जमींदारी है। तो भगवान तो हंस रहा है, हाँ जो क्या बोल रहा है। कुछ दिन बाद उनका बहुत तकलीफ, माने शरीर बहुत खराब हो गया, हाँ बीमार आ गया। तो उसी समय भगवान के पास आए, भगवान हमारे परीक्षा पास करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, आप हमारे बीमार जो है वो बीमार अच्छा कर दीजिए, हाँ ये मेरा रिक्वेस्ट है। हाँ मैं कभी 4 बजे नहीं उठता, आपको लिए 4 बजे उठा, हाँ मैं निरामिष नहीं खा रहा है, हम ही आमिष खाते हैं, बहुत मांस मछली मीट अभी सब छोड़ दिया आपको लिए, तो मैं आपको लिए कर रहे हैं, आप तो मेरे लिए कुछ करिए। भगवान कुछ बात नहीं बोला, कुछ दिन बाद मर गया। जाने के बाद भगवान आया, बोले क्या हुआ, बोले हमारे यार बात नहीं करना चाहिए। मैं कितना बार प्रार्थना किया ना, जो हमारे शरीर अच्छा नहीं है, बीमार हुआ, अच्छा कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए, आप नहीं कर दिया। आपको लिए मैं 4 बजे उठते हैं, आपको लिए हाँ निरामिष खा रहा है, आपको लिए भोग चढ़ाते हैं, कैसे माला जप कर रहा है, आपको लिए कर रहे हैं, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए मैं भक्ति भी छोड़ दिया और अब आपको लिए कोई संबंध नहीं है। भगवान बोले ठीक है चलिए, थोड़ा तो हमारे साथ घूमने के लिए चलिए। तो नदी के पास जा रहा है, जाने के पास बोले एक किसका पेड़ है, बोले अरे प्रभु जी कितना आदमी जा रहा है, कैसे पेड़ का ये छाप है कैसे मालूम है। तो भगवान एक दावा दिया, देने के बाद है अरे प्रभु जी ये तो आपको पैर का छाप है, भाई देखो शंको चक्र सब कुछ है ना। बोले अच्छा ये किसको पैर का छाप है, छाप के क्या बोलता है, छाप बोले चरण चिन्ह पाके जो चिन्ह किसका। बोले प्रभु जी मालूम नहीं है। बोले आप मारिए, मैंने कहा प्रभु जी ये तो मेरा है। बोले अच्छा चलिए। तो जा रहा है, देखा भगवान का पैर का चिन्ह है, उनके चिन्ह है। जाते आते देखा प्रभु जी मेरा मैं कहाँ गया, ये तो आपको खाली पैर का चिन्ह है, हमारा तो चिन्ह नहीं है, आपको पैर तो दिखती ज़्यादा दबा गया। बोले चलो। जाते आते देखा ये किसको पैर है, बोले तो मेरा है, आप कहाँ गया। बोले सुनिए जिस समय आप प्रार्थना कर रहे हैं ना उसी समय आपको मैं गोद में ले लिया, ठीक है, इसलिए आपको पैर का चिन्ह नहीं है, मेरा पैर का चिन्ह है। जिस समय आप बोला जो आप हमारे लिए कुछ नहीं किया, मैं भक्ति किस लिए करूँगा, भक्ति छोड़ दिया, मैं आपको छोड़ के चले गया, इसलिए आपको पैर का छाप है, मेरा छाप नहीं है। इसलिए भगवान हमेशा हम लोग के देखते हैं, लेकिन हम लोग पता नहीं है जो भगवान का प्रार्थना करते हैं भगवान सुनते हैं कि नहीं सुनते, हमेशा सुनते हैं। एक कहानी से प्रमाण हो गया जो भगवान हमेशा बात हमारे सुनते हैं, हमारे साथ में है, हाँ ठीक ना। तो इसलिए भगवद गीता में
अष्टम अध्याय में, हाँ, सप्तम नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है देखो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर जिद्द च मर्जा पित मुन बुद्धि मामे वैशत असंशय। हाँ, हे अर्जुन, तुमने सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मौन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हाँ, भगवान के पाने के लिए, भगवान का धाम जाने के लिए, हैं, क्या बोल रहे हैं, हमेशा उनका चिंतन करना चाहिए, तब मिलेगा। हाँ, ऐसे जल्दी नहीं मिलेगा। नवम अध्याय में 34 नंबर श्लोक में क्या बोला है, मन मना भव मद भक्तो मद जाजिमं नमस्कुरु मामे वैश्य युक्त एवं आत्मनं मत परायण। हाँ, तुम्हारे मौन दीजिए। हाँ, पहले मौन के देने के लिए बोला, और भक्त होने के लिए बोला, पूजा करने के लिए बोला, प्रणाम करने के लिए बोला। 10वें अध्याय में 10 नंबर श्लोक में बोला है मौन देने के लिए कितना कठिनाई है। हाँ, भगवान का पूजा करने के लिए सब कुछ के कितना कठिनाई है। लेकिन 10 नंबर श्लोक में 10वें अध्याय में बोला है तेषां सतत युक्तनाम भजतं प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि जोगं तंग जेन माम उपजानते थे। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उनमें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसका द्वारा मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, तेषां सतत युक्तन, हमेशा युक्त रहना चाहिए तभी मिलेगा। ऐसे करके भगवान बहुत बार कुछ बोले हैं जे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो तब है। लेकिन भगवान अष्टादश अध्याय में, हाँ, 68 नंबर श्लोक में क्या बोल रहा है सुनिए। हाँ, मौन देने के लिए भगवान का पूजा करने के लिए कितना कठिनाई है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कितना श्लोक है, अष्टादश अध्याय 68 नंबर श्लोक है, 68 नंबर श्लोक। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। हाँ, 18 चैप्टर 68 नंबर श्लोक क्या बोल रहा है देखो। ज इदं परमं गुज्जं मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परं कित्ता मामे वैशत असंशय। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम गुज्ज बताता है यह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में यह मेरे पास वापस आएगा। देखो, मौन नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, क्या चाहते हैं? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है और गीता का बात बोलते हैं। आप गीता लीजिए, गीता पढ़िए, गीता घर में रखने के लिए मंगल होगा, ऐसे कुछ बात बोलेगा। हाँ, तो भगवान क्या बोल रहा है देखो, और अंत में यह मेरे पास वापस आएगा। भगवान का पास वापस जाने के लिए कितना सहज तरीका है देखिए। हाँ, भगवान ये बात बोलने के लिए भक्तों को विश्वास नहीं हो सकता है जे ऐसे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। भगवान 69 नंबर श्लोक में क्या बोलिए देखिए, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृत्तमा भविता न च मे तस्मात् अन्न प्रियतर भुवि। यह संसार में उसी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न को भी होगा। कितना अच्छा बात बोल दिया। हाँ, दूसरा कोई उपाय नहीं बोला, खाली क्या बोला, जो हमारे बाद दूसरा के बोलने के बाद ही एक प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, कैसे सहज तरीका है भगवान का पास जाने के लिए। हाँ, इसलिए गीता मैराथन के अभी भगवान का गीता का ये जन्म मास है, दिसंबर मास। ये दिसंबर मास में गीता सबके बिक्री करना चाहिए। हाँ, बिक्री करने के लिए एक सहज प्रोसेस है।
खाली मुंह में हंसी लगना चाहिए। क्या? हंसना चाहिए। हरे कृष्ण बोलना और मुंह के हंसी लगना, हरे कृष्ण। हाँ, खाली क्या बोलना, जोर जोर से बोलिए हरे कृष्ण, बोले एक हंसी देना चाहिए। मैं इस्कॉन से आया हूँ। हाँ, देखिए ना गीता क्या है। नहीं भाई, हाँ, बंगाल में वो पौष पार्वन जो होते हैं, संक्रांति, पौष संक्रांति में पीठा होता है। पीठा, पीठा बोलते हैं हिंदी में पीठा। हाँ, कुली पीठा, ये पीठा जो पीठा मिलता है, पीठा है हिंदी में। हाँ, पीठा। तो पीठा जो तैयार करते हैं ना, उसी समय माताजी लोग सब बाजार मार्केट में जाते हैं हांडी खरीद करने के लिए। वो हांडी हाथ में लेते हैं, ऐसे ऐसे कर मारते हैं, 3 जगह मारते हैं, ऐसे ऐसे। जो आवाज़ अच्छा होता है वो लेते हैं, जो आवाज़ अच्छा नहीं होता है राग देते हैं। तो वो दूसरा के बोलने के लिए 3 बार पूछते हैं, हरे कृष्णा मैं इस्कॉन से आया हूँ। गीता देखिए ना, जिस समय बोलेगा मैं ये सब विश्वास नहीं करता हूँ, ये सब मेरा जरूरत नहीं है, आप जाए, उस समय जानते हैं जो जो हांडी है वो पूरा अच्छा हांडी नहीं है, वो रागना ही चाहिए। ठीक है, हैं? जो बोलेगा ठीक है मैं पढ़ूंगा, अभी समय उम्र नहीं हुआ कि खरीद करने के लिए, अभी पैसा नहीं है, घर के रागने के लिए नहीं है, समय नहीं है, वो देखो आवाज़ ठीक है, हैं? और पूरा आवाज़ बहुत अच्छा है। उनके प्रेम से आप बोल सकते हैं, जैसे आएगा ऐसे। ये प्लान प्रोग्राम करे नहीं बोल सकते। हाँ, और जो कुछ बोलेगा आपको क्या बोलना चाहिए, आप बहुत बढ़िया बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जो कुछ बोलेगा आपको यही बोलना। हाँ, गीता 9वां अध्याय, हाँ, 29 नंबर श्लोक, 9 चैप्टर, कितना नंबर श्लोक बोला है? 29 है। समंग सर्वभूतेषु नामे देशस्ति ना प्रिय, हाँ, जो भजंती तुमंग भक्ता मई ते तेसु चपी अहम। एक लड़का आया, यंग लड़का, और दूसरा तिलक वाला है, तो बोले देखो तुम कृष्ण का वाणी प्रचार कर रहे हैं, बहुत चीटिंग कर रहे हैं। अरे मैं चीटिंग नहीं कर रहा, वो जो बोला है ना कृष्ण बहुत चीटिंग बाज है, उसी समय मैं ही बोला हूँ। हाँ, आप बहुत बढ़िया बात बोल रहा है, लेकिन मैं समझने के लिए हमारे बहुत कठिनाई है। हाँ, आपको चिंतन में आप बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरा चिंतन में थोड़ा ये हुआ, किसको किस लिए आप बोल रहे हैं कृष्ण बहुत बड़ा चीटिंग बाज है। बड़े देखिए गीता 9वां अध्याय, हाँ, 29 नंबर श्लोक। अभी आप मेरे पास तो गीता है, देखिए ना, खोलो, बोलिए। तो इंडिया देखो क्या बोल रहे हैं, समंग सर्वभूतेषु नामे देशस्ति ना प्रिय। भगवान बोल रहे हैं कोई हमारे प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, सभी के समान भाव से मैं देखता हूँ। हाँ, नीचे श्लोक में, नीचे लाइन में क्या बोला, जे भजंती तुमंग भक्ता मई ते सुचपी हम। भगवान चीटिंग कर रहे हैं ना, बोले जे जैसे भक्त है ऐसे मैं कृपा करता हूँ। अरे भगवान तो पहले लाइन में बोल दिया, जे कोई हमारे प्रिय नहीं है, कोई अप्रिय नहीं है, सभी के समान भाव से दे। नीचे लाइन में क्या बोल रहा, हाँ, और चीटिंग बोला। अभी चीटिंग नहीं है, आपको समझने के लिए आपको दिमाग में नहीं आया। मैं एक उदाहरण दे रहा है, हाँ, आपको चिंतन में आप ठीक बोल रहे हैं, हाँ, आपको मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए थोड़ा गलती हो गया। मैं जो बोल रहे हैं आप सुनिए। हाँ, आपको बोली क्या मीठा आपको अच्छा लगा? बोले मैं गरम गरम जिलेबी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बोलिए जिलेबी का अभी दाम मूल्य क्या है? बोले जिलेबी का मूल्य अभी 80 रुपया। अभी देखो कोई आदमी 80 रुपया देगा तो कितना जिलेबी देगा? 1 किलो देगा। 40 रुपया देने का तो क्या देगा? 500 ग्राम देगा। यदि 20 रुपया देगा तो कितना देगा? 250 रुपया बोलते देते हैं, देगा। तो यदि 20 रुपया देगा ओके भी 1 किलो देगा, जो 40 रुपया देगा ओके भी 1 किलो देगा, जो 80 देगा ओके, और समान होगा? समान नहीं। दुकानदार पूछते हैं तुम कौन जात का है, तुम पैसा लेके आया कि नहीं आया, पूछते हैं? नहीं पूछते। भगवान गीता सबके लिए है, कौन जाति कौन संप्रदाय के लिए नहीं है।
जो मिठाई दुकानदार कोई नहीं पूछता है तुम कौन संप्रदाय है, तुम कौन जाति है, पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। भगवान भी ऐसे बोलते हैं। हाँ, देखो दुकानदार जैसे बोलते हैं खरीदार के, जे जैसे पैसा देगा ऐसा, भगवान ऐसे बात बोल रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? जे भजंती तुमंग भक्ता मई ते तेसु चपी हम, जे जैसे भक्ति करते हैं ऐसे मैं उनके प्रेम करता हूँ। जैसे दुकानदार का पैसा देता है, दुकानदार ऐसे माल देता है। वो लड़का ऐसे माने क्या बोला, आश्चर्यान्वित हो गया पूरा। होने के बाद बोले ऐसे तो कभी मैं चिंतन नहीं किया, इसलिए तो मेरा गीता लेना चाहिए ना, रख दीजिए, पैसा दीजिए, नाम बोलिए, नाम बोलिए, जल्दी लिखना चाहिए और देरी नहीं करना चाहिए। जो कुछ बोलेगा आपको, जैसे प्रश्न करेगा आपको ऐसे उत्तर देना चाहिए। और बुद्धि कौन देगा? ददामी बुद्धि जुगांगतंग, भगवान बुद्धि देगा। हाँ, जो फुटबॉल खेलते हैं ना, जो बॉल आते हैं ऐसे प्लान प्रोग्राम से नहीं मार सकते। जैसे बॉल आएगा ऐसे ओ मारेगा। ऐसे आपको पास जो आएगा पहले आपको बोलना चाहिए बहुत अच्छा बात बोल रहा है, ओके नहीं बोलना है, ये बात नहीं बोलना है, नहीं, ओके पहले रुकना चाहिए, इसलिए ओके पहले ही बोलना चाहिए बहुत अच्छा बात बोल रहा है, आपको बात बहुत मीठा लगा, बोलिए। और क्या? हाँ, मैं हिंदी अच्छा नहीं बोल सकता, ठीक है, और हिंदी भी जानकारी होता है लेकिन बोलने के लिए बहुत कठिनाई है। तो एक बिहार में गया, उसी समय तो लालू का राजत्व था। हाँ, तो 12 बजे आते हैं, 3 बजे आदमी चले जाते हैं। तो देखा, हाँ, हमारे गाड़ी में बहुत माने गर्म काल में जल्दी पसीना आता है, पूरा एकदम गीला हो गया। तो देखा कहाँ मैं, देखिए एक PW ऑफिस पूरा खाली है, वहाँ पर बैठ गया। तो बैठने के बाद वो बेंगलोर गया। तो बेंगलोर जाने के बाद कुछ उनका अच्छा नहीं लगा। वो बोले साधु सब चीटिंग है, बेंगलोर गया ऐसे है ऐसे है, बहुत बात बोल रहा है। मैं चिंतन किया जो वो तो मेरा नहीं मारा है ना, वो तो बात बोल रहा है, तो क्या होगा, मेरा गीला होगा तो वो सूख जाएगा तो मैं चले जाएंगे। पूरा फैन चल रहा है, बैठ गया और उसी समय ऐसे बोल रहा है। थोड़ा टाइम एक दोस्त आया, उनके भी बोल रहा है, तो वो दूसरा जगह गया। उसी समय मैं बोल रहा हूँ जे हरे कृष्णा, ऐसे बड़ा ऑफिसर है लेकिन उनके पास उसी समय गीता का दाम था 120 रुपया, तो उनका पास 120 रुपया नहीं था। वो गीता लेने के लिए कितना बात हमारे बोला। हाँ, मेरा तो मालूम नहीं है जो उनके पास पैसा नहीं है। तो वो उनके फ़ोन करके बोला, अरे साधु के जो बोला है वो तो साधु कुछ नहीं समझ रहा, वो तो आप गीता लेने के लिए बोला ऐसे बैठने के लिए जाएगा दिया, ये ले। बोले अच्छा, वो कुछ समझ नहीं पाया, 120 रुपये है तुम्हारे पास? मुझे है। वो दे के भाग दीजिए। वो ले लिया, देने के बाद हमारे चले गए। बोले जाओ। हाँ, मतलब जो कुछ बोलेगा आपको खाली सुनना चाहिए। बोले ठीक है, बोलिए। हाँ, थोड़ा बात बोला, गीता लिख दिया। एक आदमी हमारे ऐसे गालागाली के हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, गाली दे रहा है। तो उसी समय मैं अच्छा से सुन रहा है। दिन सुनने के बाद थोड़ा टाइम बोला, बहुत अच्छा बात बोल रहा है, बहुत मीठा लग रहा है। अरे बोलिए ना। बोले क्या मीठा लग रहा है? अरे नहीं बोलूँगा। अभी ठीक है, आप ऐसे बात बोला, मैं सुना है ना। हमारे तो एक बात सुनिए, सुनना चाहिए। आप बोलिए, सुनेगा? बोले हाँ, मैं एक ही बात बोलूँगा। बोले बोलिए। एक गीता रख दीजिए। हाँ, नाम बोलिए। वो हमारे मुख से एकदम ऐसे से तकाया, क्या साधु है। ऐसे गाली देने के बाद बोले आज दूसरा आप बोले ना जी, एक बात मैं सुनूंगा, मेरा बात है, गीता रख दीजिए। नाम बोलिए, जल्दी नाम बोलिए, जल्दी नाम बोलिए। हाँ, नाम लिख के उनके दे दिया। दे के बाद वो बोले मैं बिजनेस पॉलिटिक्स तो आपको बहुत अच्छा है। हैं, कहाँ से सीखा? सब विदेशी लोग आपको बिजनेस सिखाते हैं। अभी ना बिजनेस नहीं है, भगवान का कृपा है, रख दीजिए, पढ़िए, ठीक है। हाँ, ऐसे गीता बिक्री करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है। खाली आपको पास आपको इच्छा है, जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए। हैं, गीता यहाँ से ले लीजिए। जब मैं 3 पीस गीता लूँगा, लेने के बाद बिक्री होने के बाद आपको पैसा दे देंगे। हैं, कोई असुविधा नहीं। हमारे सारंगो ठाकुर है, उनके पास जाए, जो हमारे 2-3 पीस किताब दीजिए, लीजिए। लेने के बाद खाली आदमी के पास जाना चाहिए और बोलना चाहिए। हाँ, वो लेगा, एक नहीं लेगा, 2 नहीं लेगा। आपको याद करना चाहिए, अरे कृष्ण बलराम तो
भीख मांगने के लिए भेज दिया, लेकिन ब्राह्मण नहीं दिया ना, लेकिन ब्राह्मण पत्नी भी दे दिया। अरे एक नहीं लेगा तो दूसरा कोई ले लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको जाना चाहे। हाँ, पहले बहुत लाज लग गया, क्या बोलूँगा, क्या है, ठीक है मैं बोलूँगा हरे कृष्णा, किताब लेगा, देखिए ना, देखिए ना, एक गीता ऐसा पवित्र है। हाँ, राज विद्या राज गुज्जम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष भगवम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, आपको सुख देगा। और ये सुख, वो जो किताब जैसे बिक्री हो रहा वो अव्ययम, वो कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए एक किताब बिक्री करने बोलता है सुकृति होगा। क्या होगा? सुकृति होगा। इसलिए आपको गीता मैराथन है, हाँ, सबके 1 पीस 2 पीस, हाँ, एक सप्ताह में कम से कम 2 पीस 3 पीस बिक्री करना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद का किताब, प्रभुपाद का कृपा मिलेगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। Hare Krishna, Krishna